हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोबल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम यहाँ एक नई वीडियो के साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में से फॉर क्लास 10th के लिए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। हमने केमिकल बॉन्ड पूछा है इसमें कि किस टाइप का बॉन्ड है। हमने केमिकल बॉन्ड पढ़े थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड एंड सेकंड इज कोवलेंट बॉन्ड। Ionic bond and second is a covalent bond. Ionic bond is formed by the complete transference of an electron. Complete transference of an electron. And covalent bond is formed by the sharing of an electron, by the sharing of an electron. Now the question is that what is the name of the chemical bond formed by the sharing of electrons between two atoms. Sharing जो हम word आ जाए, that is the bond is covalent. Now here the bond is covalent. And now the second is the by the transfer of electrons from one atom to another. When the word transfer is comes, now the bond is ionic. Here is covalent bond and here is ionic bond. Now the second question is that what would be the electron dot structure of carbon dioxide, sodium chloride and chlorine molecules. Now the electron dot structures. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ा था। आउटर मोस्ट शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के चारों तरफ, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. नाउ वी हैव टू राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड्स. नाउ carbon dioxide, first of all we have to know about carbon, the atomic number of carbon, that is 6. Atomic number of carbon is 6. Now the electronic configuration of this is 2 and 4. There is 4 electron in the outermost shell of carbon. So first of all we represent the 4 electron by dot 1 2 3 and 4. Here oxygen is 2 and 1 oxygen. Here is carbon and here is oxygen. The atomic number of oxygen is 8. Now the electronic configuration is 2 and 6. Here it have tendency to gain of 2 electrons. Now here first is oxygen is here and 1 oxygen is here. There is 6 electron in their outermost shell, which is represented by dot 1 2 3 4 5 and 6. 1 2 3 4 5 and 8. तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास तो सिर्फ 6 है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले सकता है? इस कार्बन से ले सकता है. नाउ देयर इज डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट and here the this oxygen have 6 electron in their outermost shell and here carbon have 2 electron in this side. Now it form bonds. Here carbon, there is 4 electron in their outermost shell, that is 1 2 3 and 4. Now we can say that it is the electron dot structures of carbon dioxides. And now the electron dot structures of sodium chloride. Sodium chloride NaCl. First of all we have to know about the atomic number. Now the atomic number of sodium is 11 and atomic number of chlorine is 7. Here outermost shell there is 1 electron and here outermost shell there is 7 electron. Now represented by dot Na and Cl. Here is 1 electron which is represented by single electron and here is 7 electron which is represented by dot 7 electrons. Now this is the electron dot structures for NaCl. And chlorine
chlorine यानी कि Cl2 molecules. Here chlorine is 2. Now first of all Cl and Cl. Now here the atomic number of one chlorine is 17. It means atomic electronic configuration is 287, and here is also 287. There are 7 electrons are present in the outermost shell, which represented by dot 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. It is the electron dot structures for Cl2. Now the next question is that now the next question is here. First question is done, second question is done. Now the third question, the atomic number of sodium is 11. Atomic number of sodium is 11. Atomic number of sodium, that is 11. And what is the number of electrons in Na positive? Number of electrons in Na positive is, क्वेश्चन हमसे पूछा है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है हमें Na का, दैट इज 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं Na पॉजिटिव के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर जितने होंगे उतने ही क्या होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. Here the atomic number of sodium is 11, so we can say that the 11 electrons are present in sodium. कि यहाँ जो सोडियम है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेकिन अगर यहाँ हमें कोई आयंस देते हैं तो उस आयंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. अगर उसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, अगर किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव साइन है तो उसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है. अगर यहाँ +1 है तो इसका मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया. अगर +2 है तो इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया. अगर +3 है तो इसका मतलब उसने +3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है. तो अगर हम यहाँ Na पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया. अब उसके पास पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 11 थे. उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो 11 माइनस में 1, दैट इज इक्वल टू 10. तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Na पॉजिटिव इज 10. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. Means atomic number of chlorine is 17. So number of electron in Cl negative. एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन दे रखा है हमें 17, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में पूछा है, Cl नेगेटिव के अंदर पूछा है. यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17, इट मींस there are 17 number of electrons are present in a neutral atom of chlorine. But in Cl negative, negative sign indicates that it gain electrons. gain का मतलब लेना, कि इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, गेन किया है. अगर यहाँ -1 साइन है, that it indicates that it gain only 1 electron. If it have 2 negative signs, then it indicate that it gain 2 electrons. अगर -3 sign, then it indicate that it gain 3 electrons. Now from here we can say that here first of in beginning in a neutral atoms of chlorine there are 17 electrons, but in Cl negative it gain 1 electron. अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो पहले 17 थे, तो अब कितने हो गए, 17 + 1 that is equal to 18. Now here is the number of electrons in Cl negative is 18. Now the third question is done. Now the fourth question is the electronic configuration of 3 elements X, Y and Z are as follows. X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है हमें 2 and 4, Y का दे रखा है 2, 7, Z का दे रखा है 2 and 1. Which two elements will combine to form an ionic compound? कि इनमें से कौन दो एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, और किस दो एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करें तो वो कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट फॉर आयनिक कंपाउंड्स
फर्स्ट इज मेटल एंड सेकंड इज नॉन मेटल्स, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो कौन बनाते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स बनाते हैं। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स किसी भी एलिमेंट्स को देख के हमें कैसे पता चले कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल्स, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो मेटल्स होती हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 5 6 और 7। तो यहाँ आपको सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स चेक करने कि जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे देन इट कैन फॉर्म मेटल्स, यानी कि इट लॉस आयंस, और which have 4 5 6 7 electrons, then which is non-metals. अब now here we can say that this is a non-metal. Here outermost shell there is 7 electrons. Now we can say that it is also a non-metal. But here in this case here is the 1 electron in the outermost shell, that is it is a metal. Now the question is that which elements combine to form ionic compounds, कि अब इनमें से किसको हम कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास देखिए फॉर एग्जांपल के लिए ये CH आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ना तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ से ये वाला कंपाउंड तो क्या हो, ये वाला एलिमेंट तो क्या हो गया, कट हो गया, क्योंकि जहाँ शेयरिंग की बात हो जाएगी वहां तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, ट्रांसफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और ट्रांसफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स कौन करेगा, जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए क्या कर सकते हैं, लॉस, यानी कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाएगा, लॉस कर पाएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है। तो यहाँ हमारे पास ये क्या हो गई, मेटल, और ये क्या हो गई, नॉन मेटल्स। तो हम जो कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है वो कौन फॉर्म करेगा, यहाँ से आयनिक कंपाउंड कौन फॉर्म करेगा, दैट इज Y और Z। Y और Z क्या फॉर्म करेंगे, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which two elements will combine to form a covalent compound, और इनमें से covalent compound कौन फॉर्म करेगा, covalent compound is that compound which is formed by the covalent bond, and covalent bond is that which is formed by the mutual sharing of an electron। तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कौन करेगा इलेक्ट्रॉन की, जो जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को ना तो कम्प्लीटली लॉस करते हैं और ना ही गेन करते हैं, सिर्फ वो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ से अब क्या हो गया, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए कि एक एलिमेंट तो हमें पता चल गया कि X तो होगा ही होगा, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होगा, X तो होगा ही होगा। अब X के साथ कौन सा होगा, इसमें Y होगा या Z होगा। अब भाई Z तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल्स होंगी, और जो जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगी, नॉन मेटल होंगी। और हमेशा याद रखना जो आयनिक कंपाउंड्स बनती हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो हमेशा किसके बीच में होते हैं, नॉन मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में होते हैं। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट तो क्या हो गया, कट हो गया, क्योंकि ये तो क्या हो गई, मेटल है, तो बची कौन, Y। तो जो कोवलेंट कंपाउंड होगा दैट इज XY। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the electronic configuration of 3 elements A, B and C are as follows।
The electronic configuration of A is 281, B is 287 and C is 24. The first question is that which of these element is a metal or non-metals, कि इनमें से कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। तो मेटल के लिए अभी बताया था, मेटल के लिए हमें क्या देखना है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखने हैं, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। मेटल्स जो होंगी इनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स इनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज 5, 6 और 7, ठीक है, और 4 भी होता है, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पे जो मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई करने के लिए सिर्फ हमें क्या देखना है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखना है। जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज मेटल, एंड आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज ए नॉन मेटल्स। नाउ इन दिस केस फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट here in outermost shell there is 1 electron, so we can say that it is a metal. Here is 7 electron, so we can say that it is a non-metal. And here is 4, now we can say that it is also a non-metal. Now the answer of first question is that which of these element is metal or non-metal. The element A is a metal and the element B and C is a non-metals. Now the next question is which two elements will combine to form an ionic bond or covalent bond. Now the second question is इनमें से कौन से दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके आयनिक बॉन्ड बनाएगा और कौन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अभी क्वेश्चन ऊपर क्या देखिए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना क्या है, मेटल और नॉन मेटल। आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा। और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किसके बीच में बनेगा, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड बी फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ए बी कैसा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। And B and C form a covalent bond. B and C form a covalent bond. Now the next question is which element will form an anion of valency 1. कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट इनमें से एक एनायन फॉर्म करेगा जिसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। इसे समझने के लिए देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। Now the answer of third question is which element will form an anion of valency 1. हमने आयंस पढ़ा था। आयंस क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्जली एटम्स होता है आयंस। जो आयंस होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज कैटायंस and second is anion. Cations क्या होते हैं, which have positive charge, and anions which have negative charge, Now here we have three elements A, B and C. Now here the electronic configuration of A is 2, 8 and 1. The electronic configuration of B is 2, 8 and 7 and the electronic configuration of C is 2, 4. अब यहाँ से सीधी सी एक बात तो क्लियर हो गई कि इन तीनों में से C तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी वैलेंसी तो कितनी हो गई, टेट्रा वैलेंसी, यानी कि वैलेंसी कितनी हो गई, 4 वैलेंसी हो गई। और वैलेंसी के लिए हमने बताया था
कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगी, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 2, आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 3, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 4, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 3, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 2, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन then valency is 1. Now first of all here which have 1 electron in the outermost shell and which have 7 electron in the outermost shell whose valency is same, but in both cases one is cation and one is anion. Now cation those which have positive charge and positive charge which loss of electrons. तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ भी इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी क्या है भाई 1 है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी क्या है वो हमारे पास 1 है। लेकिन अब किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन क्या है एनायन पूछा हुआ है, तो यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा वो क्या होगा कैटायंस होगा, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इट मीन्स इट हैव पॉजिटिव चार्ज एंड इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर to acquire noble electronic configuration, so it have negative charge. So from here we can say that A is a cation and B is a anion. B is a anion. Now the which element will form an anion? Then element B form an anion of valency 1. Now these are the most important questions from metals and non-metals. Please note down in their notebooks and अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।